You see, all of us experience that we are stressed at one point or the other. And as I told you yesterday, some stress is normal and even useful. Stress can help if you need to work hard or react quickly. Let me give you one example. It can help you win a race or finish an important job on the time. But on the other hand, if stress happens to be too, you see, if it happens too often or lasts too long, it can have bad effects. It can be linked to headaches, an upset stomach, back pain, and even trouble sleeping. It can weaken one's immune system, making it very difficult to fight off disease. So, if you already have a health problem, stress may make it worse. It can make you moody, tense, or depressed, and your relationships may suffer, and you may not do well at work. So, in this session, my expert colleague will interact with you on identification of the sources of stress in your life and how to deal with stressful situation. So we have with us Dr. Manjula Sularia, who is a Josh talk speaker, a life skill coach, and social entrepreneur. She is presently the director of Pransachatas Foundation, which is an NGO promoting health, hygiene, and safety amongst children through sensitization, awareness, and education. Yeah. So now, as the topic goes, it is managing stress for effective human relations. And I think जैसा मैं I was listening to Dr. Sunil Dutt कि past में अभी हमारे कुछ sessions हो चुके हैं on importance of human relations and maybe even on stress management also. So आज कहीं ना कहीं जो मेरा role है आपके साथ, it is basically connecting the dots. जहाँ पर हम अब स्ट्रेस को भी जानते हैं एंड वी इवन नो कि स्ट्रेस से क्या क्या हमें डैमेजेस हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स और अराइज हो सकती हैं। और फिर वही बात है कि अगर हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो डेफिनेटली पहले तो हम पर्सनली इफेक्टेड हैं, राइट। देयर आर लॉट ऑफ जैसे सर ने बात किया कि मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, राइट। सो आप खुद पर्सनली फिट नहीं है, पर्सनली यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड योर स्ट्रेंथ। और फिर वही बात है, अगर आप खुद अपने आप में स्वस्थ नहीं है, खुद आप स्ट्रांग नहीं फील कर रहे हैं, देन एज इट इज अपने से हट कर किसी और के साथ खुश रहना, उन्हें अच्छा महसूस कराना गेट्स मोर डिफिकल्ट। सो now I wanted to understand कि yes, what is your understanding, what is your understanding कि what actually stress is। मतलब मैं कारण नहीं पूछ रही हूँ स्ट्रेस किन कारणों से होता है, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हम जब स्ट्रेस महसूस करते हैं तो व्हाट इज आवर स्टेट, हाउ डू वी फील, how effective we are, or yes, maybe otherwise also, mentally, emotionally, what is our state, how much energetic do we feel, how much strong do we feel। So whenever it is a stress filled situation, or whenever we are kind of compelled, जब हमारा मन करता है ये कहने का कि यार जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है, बहुत तनाव है, कुछ सही नहीं चल रहा है, उस टाइम पे हम प्रैक्टिकली, फिजिकली, इमोशनली या मेंटली क्या महसूस कर रहे होते हैं, व्हाट इज आवर स्टेट एट दैट टाइम, आर और व्हाट इज योर स्टेट एट दैट टाइम। सो एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई भी जो बताना चाहेंगे इस चीज पे, थोड़ा थोड़ा सा यू वुड लाइक टू शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस, यू आर मोस्ट वेलकम। अपने आप को असंतुलित महसूस करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? हाँ जी सर, यस। अनबैलेंस्ड, इम्बैलेंस, राइट। अगर मैंने ठीक सुना है सर, थोड़ा सा आवाज में डेफिनेटली प्रॉब्लम है। यू सेड अपने आप को इम्बैलेंस्ड महसूस करते हैं। यस मैम, ही सेड या बैलेंस महसूस करते हैं, अपने आप को इम्बैलेंस, राइट। सो कहीं ना कहीं हमारा जो संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है, राइट। एंड एज इट इज व्हेन वी आर नॉट इन बैलेंस, तो फिर कुछ भी लाइफ में सही नहीं हो सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू हैव टू बी बैलेंस्ड, यू हैव टू बी एट पीस,
राइट आप अपने मन से शांत होने चाहिए। यस आपको आपका जो दृष्टिकोण है वो कहीं स्थायी होना चाहिए, कहीं स्टेबल होना चाहिए, देन ओनली यू आर एबल टू कनेक्ट with yourself and even with the surroundings and the people around, right? So very nice sir ने कहा कि imbalance महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं we are out of balance or we are not in that state of focus. Anybody else कुछ और, what do you feel, what do you experience when you are in a state of stress? day-to-day activities भी हम लाइफ में अच्छे से perform हाँ जी सर, day-to-day activities अच्छे से perform कर पाते हैं। थोड़ा सा वॉइस का आई थिंक नीड्स टू बी, हाँ मे बी सर इज हेल्पिंग अस जी। हेलो जी सर अब हाँ जी हाँ जी, am I audible? यस सर आई थिंक दिस इज बेटर नाउ जी। day-to-day activities होती है लाइफ की, उनको भी हम सही से नहीं कर पाते, तो उसमें भी हम हाँ वेरी ट्रू सर, बिल्कुल जो हमारी लाइफ की जो नॉर्मल रूटीन है, लाइफस्टाइल है, दिनचर्या है, हम उसको ही प्रॉपरली नहीं एग्जीक्यूट कर पाते हैं, राइट? एंड आई थिंक साइमल्टेनियसली फिर वही बात है कि हम जो बेसिक चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे उठकर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसकी तरफ ध्यान देना या उसकी तरफ यस फोकस करना और मुश्किल हो जाता है। somebody else, yes. very irritating जब भी कोई हमसे कुछ बोलता है तो हमको irritating फील होता है। We feel irritated, right sir? अगर मैंने ठीक सुना है, Yes, ma'am. इरिटेटेड, हाँ बिल्कुल, छोटी छोटी बात को हम अपना आपा खो देते हैं, राइट? बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा लगता है कि यस कोई मुझे जान के तंग कर रहा है, या इस वक्त मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, राइट? चाहे वो मेरे मतलब मेरे अच्छे के लिए कोई कुछ मुझे बता रहा है, बट आई एम स्टिल नॉट इन अ स्टेट ऑफ लिसनिंग, राइट? मैं वो लिसनिंग मोड पर नहीं हूँ। एनीबडी एल्स? Yes, ma'am. When we have lot जी, of work pressure, lot of work to do. lot of work to do, that is the situation when we feel stressed up, right ma'am? Yeah, exactly. Yes, 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 We have a limited time span and we have to do lot of work. ट्रू, वेरी ट्रू मैम। सो बेसिकली जहाँ पे चीजें हमसे बैलेंस आउट नहीं हो पा रही हैं, राइट? हम अपनी डेडलाइंस मीट नहीं कर पा रहे हैं, एंड एक वक्त पे हमें ऐसा लगता है वी आर ओवरलोडेड, राइट? वी आर ओवर प्रेशराइज्ड कि 10 जिम्मेदारियां लाइंड अप हैं, देयर आर 10 थिंग्स टू बी डन, एंड अब समझ नहीं आ रहा है कि यस व्हाट इज टू बी टेकन अप फर्स्ट। ओके, ऐसा है कि दिस इज फॉर एवरीबडी, राइट? एंड मतलब वही चीज है कि ऑनलाइन में तो और भी ज्यादा इट इज अबाउट जब अबाउट लर्निंग होता है, इट्स मोर ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप खुद अपनी लर्निंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। वैसे तो ऑनलाइन क्या ऑफलाइन में भी सिमिलर सिचुएशन ही होता है, राइट? जब हम आमने सामने भी होते हैं तब भी एक्चुअली सिर्फ वही लोग कुछ सीख पाते हैं या कुछ किसी तरह से एक सेशन से कुछ कनेक्ट हो पाते हैं जो इच्छुक होते हैं, जो विलिंग होते हैं, राइट? अदरवाइज nobody can benefit you in any way, right? I think this is one very very important reality that we should all understand, that in any learning platform, if you are not willing, जो पार्टिसिपेंट्स है, अगर आप इच्छुक नहीं है, आप सीखना नहीं चाहते हैं, या आप उससे बेनिफिट नहीं करना चाहते हैं, राइट? तो कोई भी एक्सपर्ट हो वो आपको कोई बेनिफिट करवा भी नहीं सकता है, राइट? सो बट देन ऑफ कोर्स ऑफलाइन में हम फिर भी थोड़ा सा आमने सामने होते हैं, थोड़ा सा एक पर्सनल कनेक्ट होता है, तो हम फिर भी थोड़ा सा यस एक दूसरे को ज्यादा प्रभावित कर पाते हैं, वी आर एबल टू इन्फ्लुएंस ईच अदर बेटर, राइट? बट ऑनलाइन में इट इज मोर ऑफ दैट पर्सनल योर विलिंगनेस, आप कितना ज्यादा खुद अपने मन से कुछ करते हैं। यस आपको मैंने भेजा है। सुनील दत्त सर, आई थिंक आप आप अनम्यूट हैं, तो आप म्यूट कर लेंगे। ओके, अच्छा, सो नाउ वी विल डू अ स्मॉल एक छोटा सा थोड़ा सा अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब हो सकता है अभी भी बहुत लोग बात अपनी नहीं कह पा रहे हैं, या अभी भी कहीं ना कहीं कोई शंका है, कोई डाउट है कि हाउ डू आई फील, व्हाट इज माय स्टेट, मेरी क्या उस वक्त मतलब मनो अवस्था होती है जब मैं स्ट्रेस्ड अप होता हूँ या होती हूँ, राइट? तो हम 2 मिनट के लिए, नॉट 2 मिनट ऑल्सो, आई थिंक जस्ट 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, 60 सेकेंड्स के लिए आंख बंद करके बैठेंगे,
ऑल ऑफ अस। अपनी आंखें ही बंद करनी है, अपने दाएं बाएं वाले की आंखें नहीं बंद करनी है, हमने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लेनी है, राइट। सो हम सिर्फ 1 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठेंगे और इस पल में at the moment right now whatever you're feeling, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपकी मनोवस्था है, उसके बारे में थोड़ा सा गहराई से ध्यान देंगे। सो वी हैव टू जस्ट पुट दैट फोकस ऑन टू आवरसेल्व्स, राइट, इन दिस 1 minute, नथिंग एल्स, कुछ नहीं, राइट। आप जो पर्सनली फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट कैन बी सम पेन ऑल्सो, इट कैन बी सम इचिंग ऑल्सो, कुछ भी जो आपको अभी लग रहा है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है, भूख, जो भी, वट एवर यूर फीलिंग, वट एवर यूर एक्सपीरियंसिंग, या वट एवर यूर थिंकिंग राइट नाउ, वट एवर इज योर थॉट राइट नाउ, उसको थोड़ा गहराई से उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सो जस्ट 1 minute of your eyes closed and all focus onto yourself. So just 1 minute, please. आंखें अपनी बंद करनी है, या ओके। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, 1 मिनट हो गया है। यस, पहले अभी वही आप में से कोई भी, बिना मैं बीच में कुछ आपके ध्यान को और भटकाऊं या आई से समथिंग, राइट, एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू शेयर व्हाट वाज योर अभी प्रेजेंट थॉट, योर फील, योर एक्सपीरियंस, कैसा लग रहा है, क्या समझ आया, क्या महसूस हुआ, एनी वन ऑफ यू? गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैंने अभी अपनी आंख 1 मिनट से बंद की। जी मैं सर। जस्ट अभी एक टेस्ट लेके आया था मेरे बच्चों का, स्टूडेंट्स का। जी सर। जी। आंख बंद थी, मेरे आंखों में वो बच्चे ही घूम रहे थे, तो उनको अच्छा, एकदम ओके, पढ़ाया लिखाया मैंने, फिर भी वो राइट कैसे सर। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो गलती आखिर में है कहाँ, मैं गलत हो रहा हूँ या वो गलत है? पढ़ा पढ़ा के थक गए, फिर भी वो करते नहीं है। कुछ बच्चों को हाँ, इतना हाँ, हो गया है फिर भी वो लेट टाइम पे आ रहे हैं। समझा क्या? राइट। अभी फिलहाल तो मेरे आंख में ये बात घूमती रही है। ओके, ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड यस, ये आई वुड रियली मतलब अप्रिशिएट कि आपने वो पूरी सच्चाई, पूरी ईमानदारी से बताया कि वही है, आप चाहे अभी यहाँ बैठे हैं लेकिन वही ध्यान में वो बच्चे अभी तक चल रहे हैं, राइट, और वो क्या उनके साथ क्या प्रॉब्लम इशू है, क्या कंसर्न है, क्यों वो बात नहीं सुनते हैं या समझते हैं, राइट। सो वो आपका एक मतलब एक सीरियस कंसर्न है। ओके, एनीबडी एल्स, एनीथिंग जो आपने अभी सोचा, समझा या महसूस किया? Hello, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग मैम। It is my constant thing. I mean, whenever I close my eyes, I'll have a to-do list in my mind going on. It is a Okay. constant thing. Okay. ओके, ओके। सो अभी भी वो टू डू लिस्ट चल रहा है मैम, एंड उसमें कुछ ऑल्टरेशंस होती हैं, वो Yes. कम ज्यादा होता है? हाँ, कम ज़्यादा होता है, कभी-कभी ऐसा लगता है, अरे छोड़ो क्या करना। Sometimes I will do that, but maximum time it's a to-do list going on in my mind. राइट। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। एंड मैम, आपका गुड नेम? Myself, Iti Vijay. पार्डन मैम? Iti Vijay. एपी? Iti, I-T-I. इपी, ओके, इपी, ओके, राइट। थैंक यू इपी मैम। यस, कोई और कुछ? आई होप मैं ठीक बात बोल रही हूँ, अभी तो नहीं गड़बड़ कर रही? अच्छा, ओके, हाँ, यस मैम, जी। हाँ जी।
हेलो यस सर, हाँ जी। क्लाइमेट मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, मतलब विंटर आर अप्रोचिंग, तो मैंने विंटर्स के ब्लैंकेट वगैरह नहीं निकाला, तो मैं उसके बारे में सोच रहा था। वेरी गुड सर, वेरी नाइस। और ये बड़ा सीरियस कंसर्न है सर, राइट। और फिर वही होता है कि इतना भागा दौड़ी होती है तो कई बार उसके लिए भी वक्त नहीं मिल रहा होता है, जानते हुए कि ये सब वेदर चेंज हो रहा है और उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए, राइट। सो हाँ, ओके, गुड, थैंक यू सर फॉर दैट जेनरस रिस्पॉन्स। यस, समबडी एल्स, एनीबडी एल्स? हाँ जी मैम। मेरे दिमाग में ऐसे एक तो जैसे ही आंखें बंद करी तो नॉइज जो आ रही है फैन की वो कंटिन्यूअसली इरिटेट कर रही थी, और ओम जो होता है, ओम का उच्चारण जनरली हम आईज क्लोज करके जैसे मेडिटेट करते हैं, वो वाला फील आ रहा था। और एक बैक पेन है तो वो भी इरिटेट कर रहा था बीच बीच में कि चीजें थी। राइट। सो वो पेन अभी ज्यादा महसूस हुआ मैम, जो वैसे नॉर्मल भी रहता होगा लेकिन आंख बंद करके ज्यादा? हाँ, जब क्योंकि ध्यान हमें अपने ऊपर था तो ओम का उच्चारण चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं लगा था वो पॉइंट में अब ज्यादा पेन फील हो रहा है, और अभी भी हो रहा है क्योंकि उसके बारे में सोच रहे हैं। yes, exactly, very true मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैम यस, आप, बल्कि मैं सर्स का नाम पूछना भी भूल गई हूँ, आपका नाम मैम? डॉक्टर पूनम राजा। डॉक्टर पूनम, ओके, ग्रेट। सो एनीबडी एल्स? लास्टली आई थिंक पीछे से भी कोई हाथ रेस कर रहे थे। हाँ जी। हेलो हेलो गुड सर, हाँ जी, मॉर्निंग। गुड मैं मॉर्निंग सर। करने पर मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, और जो मेरा थॉट्स ओके, दिमाग में बढ़ रहे हैं, और जो श्वास की गति है वो भी कम हो रही है। मुझे ये समझ आया सर कि आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, उसके बाद का मुझे थोड़ा सा लाइक डिस्कनेक्ट हो गया था वॉइस, कुछ स्मार्ट भी था। आप एक बार दोहरा देंगे? कुड यू रिपीट इट वंस सर? हाँ मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। आप रिलैक्स फील, आंख बंद करके, ओके, ग्रेट, वंडरफुल सर। एंड सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश मिलर। सुरेश सर, ओके, थैंक यू सर, गुड सर, बहुत अच्छी बात है सुरेश सर कि आप एटलीस्ट 1 मिनट में ही रिलैक्स फील कर पाए इतना जल्दी, मतलब दिस वाज सच अ फास्ट रिस्पांस। ओके, एनीबडी एल्स वांट्स टू से समथिंग, या कोई और कुछ कहना चाहते हैं कुछ? Yes, ma'am. Maximum time we have to do जो हेलो काम करने की। हेलो हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। मैडम 60 सेकंड में रिलैक्स तो मिला ही, बट साथ के साथ एक स्ट्रेस भी चल रहा था 1 to 60 काउंट करने का। क्या बंद करने कब कंप्लीट हो? ओके, I was so regularly counting that 60 seconds हाँ moment, तो हाँ, डेफिनेटली जब आंखें हमने खोली तो बहुत रिलैक्स फील हुआ, बट ओके साथ में ये चल रहा था कि यार 60 सेकंड कब कंप्लीट। ओके, अच्छा, तो वो स्ट्रेस भी था साथ में सर, बट यस, आपने कहा कि रिलैक्स नहीं फील कर रहे थे। हाँ जी हाँ जी। ओके, वंडरफुल, नाइस सर। आपका शुभ नाम? डॉक्टर सतीश गुप्ता। डॉक्टर सतीश, थैंक यू सो मच सतीश सर। एंड आई थिंक मैम वाज स्पीकिंग समथिंग, कविता मैम शायद कुछ कह रही थी। हमेशा बस जैसे मैं अभी सोच रही थी Yes. कि मैं और आगे कैसे सेशन को कंप्लीट करूंगी, मैं काम कर दिमाग में बस यही चलता रहता है कि कैसे कौन सा काम कंप्लीट किस समय होगा और कम समय में होगा, ये ज्यादा चलता है दिमाग में, कम समय में कैसे Right. करें, कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे, राइट, ओके, राइट। थैंक यू सो मच आप सबको। मैं मतलब पहले तो सच में कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि यस, आपने सही मायने में वो जो 1 मिनट था वो ध्यान लगाया, राइट, तभी जो भी आपका एक्सपीरियंस था, जो भी आपका वरी था, जो एक परेशानी थी, या जो भी आप सोच रहे थे या कंसर्न था, आप एक्चुअली उससे जुड़ पाए। वेरी फ्रैंकली, वेदर यू रियलाइज्ड इट और नॉट, या मे बी वो एक फॉर्मल मोड में बताया गया था, तो वो 1 मिनट था जब आपका सच में सारा ध्यान अपने ऊपर था, अपने ऊपर किसी भी चीज के रेलेवेंस में, वेदर इट वाज इन रिलेशन टू ठंड हो रही है, राइट, तो वो सर्दी महसूस करने के लिए भी शायद आंखें बंद करना जरूरी था,
आजकल क्या होता है कि बहुत कुछ हमें हो रहा होता है, बहुत कुछ हमारे साथ चल रहा होता है, लेकिन ध्यान इतनी तरफ भटका होता है कि फिर उसमें समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है, राइट? जैसे आई थिंक डॉक्टर पूनम ने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बोला कि मेरे पीठ में दर्द रहता है और इस वक्त वो दर्द ज्यादा महसूस हुआ, राइट? आई एम राइट? डॉक्टर पूनम का ही वो रिस्पॉन्स था, राइट? सो अब वही चीज है मैम कि वो जो दर्द नॉर्मल भी रहता है, राइट, लेकिन जब हम बिजी हो जाते हैं, जब और कामों में हम लोग उलझ जाते हैं या वी गेट ऑक्यूपाइड, वी टेंड टू फॉरगेट बिकॉज वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, राइट? बट देन दैट 1 minute was actually that specific time जब आपका सारा फोकस was on to yourself, राइट? देन हमारी मैडम्स इपी मैम एंड कविता मैम को अपना टू डू लिस्ट याद आ गया, राइट? जो कि चल रहा है साथ, ऐसा नहीं है कि वो आंख बंद करने से पहले उनकी परेशानी नहीं थी, लेकिन आंख बंद करने पे वो टू डू लिस्ट ज्यादा क्लियरली दिखाई देने लगी, ज्यादा क्लियरली समझ आने लगी कि अब मेरी ये काम जो जिसको मैं शायद भूल रही थी या जिसको लेकर मैं कहीं विचलित थी, आई वाज एंग्शियस but I did not know कि what was the reason of my anxiety. Then there were sirs, I think Suresh sir and Satish sir said कि they felt relaxed, right? कुछ भी था, वो एक रिलैक्सेशन जहां पर अपने आप के साथ कनेक्ट होने का वक्त भी था, अपने आप पे फोकस देने का भी वक्त था, दूसरी तरफ वो वक्त डिस्कनेक्शन का भी था, डिस्कनेक्शन बाकी दुनिया से, राइट? अब मुझे और कोई उस पल में नहीं दिखाई दे रहा था, वो सारा ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर, मेरे कामों पर, मेरी भावनाओं पर, मेरे तजुर्बे पर, मेरी दर्द पर, सारा ध्यान मैंने अब अपने पे लगाया हुआ था, एंड इट वाज जस्ट 1 minute, राइट? अब वही सोचिए कि 1 minute में अगर हम इतना ज्यादा अपनी परेशानी को, अपने तजुर्बे को, अपनी जो भी हमारी कहीं मतलब इवन जो हमारे को ऐसा लगता है कि अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर अगर हम एक 1 minute में इतना ध्यान ला सके, तो अगर हम यही थोड़ा सा ध्यान और फोकस करें, थोड़ा सा और वक्त बढ़ा दें, तो डू वी थिंक कुछ फर्क पड़ेगा इन आवर नॉर्मल डे टू डे रूटीन? यही जो टाइम ऑफ सेल्फ फोकस है, जो आप ध्यान अपने पे केंद्रित कर रहे हैं। मैं इस वक्त वी माइट बी गेटिंग कंफ्यूज्ड कि यस हम मे बी किसी योग की बात कर रहे हैं, या हम किसी उस ध्यान मुद्रा की बात कर रहे हैं कि यस किसी मतलब हमें मंत्र का जाप करना है या कहीं और। मैं कह रही हूँ कि वो ध्यान जो आपने लगाना है वो खुद पर, पुटिंग ऑल योर फोकस ऑन टू योर सेल्फ, राइट? बल्कि आज परेशानी ही ये है कि हमारा ध्यान हर तरफ है सिवाय उस इंसान के जो आपकी जिंदगी में आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। Who is the most important person in your life? आप सबकी, आपकी इंडिविजुअल जिंदगी में आपको क्या लगता है कौन आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? Any one of you? Yeah, sir, I think wants to answer. Maybe the mic. कविता मैम, आप हमें माइक के साथ हेल्प कर सकते हैं? आगे सर को माइक चाहिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जो पर्सन होता है लाइफ में, मुझे जो लगता है वो स्पाउस है। जैसे मान लो मेरे लिए मेरी वाइफ है। जी सर, ओके। ये कहाँ पे है सर? मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। सर ने बोला स्पाउस है, वाइफ, अच्छा लास्ट में है, ओके ओके। पहले तो सर के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि सर सच में बड़े पत्नी व्रता आई थिंक, राइट? बिकॉज आजकल ऐसे हस्बैंड्स पाना बहुत, एंड इनफैक्ट मतलब आई होप मैम जहाँ पे भी हो, मैम को ये बात सुननी चाहिए। और अगर वो ये है कि मे बी सर पता नहीं कितना उनको बताते या नहीं बताते, तो प्लीज आप में से जितने भी उनके वेल विशर्स हैं, जो उनके निजी दोस्त हैं, राइट, प्लीज ये बात मैम तक जरूर पहुंचाइएगा कि यस सर ने पब्लिक में, पूरे पब्लिक फोरम में, ऑनलाइन डिजिटल मोड से ये कन्फेस किया है, राइट, कि यस उनकी जिंदगी में उनके लिए उनकी जो स्पाउस है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वंडरफुल सर, आपको तो मुझे नहीं लगता रिलेशंस मैनेज करने में कहीं दिक्कत हो रही होगी। ओके, एनीबडी एल्स? ये सर की रियलिटी है, ये उनकी रियलिटी है कि उनकी जिंदगी में उनकी वाइफ उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आप I have recorded this and
Thank you so much, ma'am. Wonderful. Okay, anybody else? आपकी और ये सर के लिए था, और कौन, क्या लगता है कि who is the most important person in your life? Any other responses? Yes, please, sir. हाँ जी. I think sir आप ऐसे भी बोलेंगे तो शायद आवाज पहुंच जाएगी. I don't know. Good morning, ma'am. My name is Vinay Gupta. Vinay sir, जी. In my life, there will be always my short-term or long-term responsibilities will be at the topmost priority. Always. Okay. Okay. So when you say both long-term or short-term responsibilities, right? वो responsibilities किसकी हैं? Okay, पहले तो किसकी, आपकी हैं personally, right? जो आपको निभान, हाँ जी. Yes, yes, ma'am. जो मुझे काम आपकी से, करनी चाहिए. जी, जी. Okay. If I'm an employee, then what kind of task should be completed? And if I'm a social person, Right, sir. so what kind of responsibilities should I pursue and complete in time? That is my foremost choice. Wonderful. Wonderful, sir. Wonderful. So, very nice, sir. As you said कि आपकी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, whether it is for a long term objective or a short term objective, वो आपको लगता है कि हमेशा आपकी first priority रहती है. I think विनय सर आपने एक बहुत ही important word use किया है, priority. प्रायोरिटी जो हम अक्सर यूज करते हैं, लेकिन अक्सर फिर भूल जाते हैं कि प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है. प्रायोरिटी क्या होता है, अगर हम उसका हिंदी वर्जन समझना चाहें. एनीवन, इट्स नॉट फॉर विनय सर, कोई भी. प्रायोरिटी को हम हिंदी में क्या कहेंगे? प्राथमिकता. एग्जैक्टली, जो आपके लिए प्रथम है जिंदगी में, राइट? वो आप, जैसे सर ने बताया, सर की मैडम है, राइट? सर की स्पाउस है, वो उनके लिए सबसे उनकी महत्वपूर्ण प्राथमिकता है. विनय सर के लिए वो उनकी जिम्मेदारियां हैं, राइट? नाउ सिमिलरली एनीबडी एल्स, अभी आपको क्या लगता है आपके लिए सबसे जिंदगी में, आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा प्राथमिक कौन है? हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन? इस वक्त मैं एक किसी इंसान के बारे में जानना चाहती हूँ हम सब की जिंदगी में. यस, यस सर. मैडम आप सबको अपनी वाइफ बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो कंप्लेन नहीं घर पे. बाकी बोलना ही कंप्लेन हो जाएगी. नहीं, appropriate answer एक साइड से आने वाला है, आप वेट करें प्लीज. अच्छा ठीक है, कौन है सर, किन से आने वाला है? डॉक्टर आरडी राठौर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. डॉक्टर राठौर, ओके. यस सर. सबसे इम्पोर्टेंट मैं स्वयं हूँ. अगर मैं हूँ तो सारे रिलेशन है, बाकी अगर मैं नहीं हूँ तो कोई रिलेशन नहीं रहता. वंडरफुल. प्लीज डॉक्टर राठौर के लिए जोरदार तालियां. दैट इज सो नाइस एक्चुअली. एंड आई थिंक सर आपने बिल्कुल सही गेस कर लिया था जिन्होंने माइक हैंड ओवर किया डॉक्टर राठौर को, कि सबसे बढ़िया और सबसे जो एक विभिन्न आंसर है वो उनसे आने वाला है. आई थिंक यही सोच कहीं आज हमारी थोड़ी सी भटक गई है. वी नो, ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता था कि आपकी जिंदगी में कौन है जिनको आप वैल्यू करते हैं, जिनको आप अपनी जिंदगी के, अपने जीवन की प्राथमिकता मानते हैं, प्रायोरिटी मानते हैं. लेकिन वही बात है जो डॉक्टर राठौर ने कहा कि अगर आप सही हैं, राइट, आप खुश हैं, तो तभी आप अपने रिलेशंस में भी वो खुशी का माहौल बना सकते हैं. सोचिए, जो इंसान खुद में परेशान है, खुद में लाचार है, खुद में बेबस है, या खुद जो जिंदगी से हताश है, वो क्या कभी किसी और के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकता है? जिसको ऐसा खुद ही लगता है कि मुझे बनाकर ही शायद ईश्वर ने गलती कर दी, राइट? मे बी आई एम अ काइंड ऑफ यस आई मीन अ बर्डन टू दिस लाइफ, राइट? एंड जो खुद ही या मे बी एक सेल्फ पिटी मोड में चल रहा है कि मैं बेचारा सबसे परेशान, या वही बात है कि या तो ईश्वर ने गलती कर दी या ईश्वर ने बहुत सारी बेइंसाफी कर दी कि सारी परेशानियां, सारे दुख दर्द मुझे ही दे दिए हैं. तो जो खुद ही अपने दुखों से, अपनी परेशानियों से इतना ज्यादा जूझ रहा है या इतना ज्यादा दबा हुआ है, वो किसी और का कभी मनोबल उठा सकता है, किसी और को बेहतर महसूस करा सकता है?
नॉट पॉसिबल, राइट? डॉक्टर पूनम, मैंने आपका हेड नॉट देख लिया है, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। आई थिंक ये जो हमें सबसे पहला प्रथम सच समझना है, द मोस्ट important reality, that is, आपकी लाइफ में the first and the most important person has to be you yourself. जो इंसान खुद के लिए अच्छा नहीं है वो किसी और के लिए भी कभी अच्छा नहीं हो सकता है। जो इंसान खुद से खुश नहीं है वो कभी किसी और के लिए भी खुशी का पात्र नहीं बन सकता है, राइट? सो फर्स्ट यू हैव टू सी कि यस, व्हाट गुड यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ। दिन के 24 घंटे, जिसमें वही बात है, विनय सर ने कहा कि उनकी चिंता का विषय हमेशा ये रहता है या उनकी प्रायोरिटी ये रहती है कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर पाऊं। आपने आंख बंद किया तो आपको वो लंबा वाला टू डू लिस्ट याद आ गया, राइट? लेकिन अब उस टू डू लिस्ट में या उन जिम्मेदारियों में क्या आपके पास वो वक्त है, क्या आपके पास वो एक इम्पोर्टेंट टास्क या टारगेट है कि मैंने इन 24 घंटे में, जो हर दिन के 24 घंटे में मैंने ये वक्त अपने लिए रखना है और इस टाइम पे मैंने वो करना है जो मुझे अच्छा लगता है? Do we have that? Okay, now that's again another question to all of you and anybody can respond. अपने पूरे एक दिन में 24 घंटे में आप अपने आप को खुश रखने के लिए या अपने आप को बेहतर महसूस कराने के लिए क्या करते हैं? Yes. Ma'am, I spend the first hours of my day for myself. Right? Oh, first hour of the day, 1 घंटा, right ma'am? Yes. Okay. आप क्या I करते go walk. I just walk or I watch sunrise or whatever. Wonderful ma'am. And ये आप कब से कर रही हैं मैम? For how many years or how much time? No, it's just for past 6 months. अच्छा, past 6 months. उससे पहले नहीं था, ऐसा नहीं था. Okay, so why did you feel the need of the same? Why did you started investing that 1 hour? Actually, I was too much stressed in past years. I had kids, and I was just feeling that I have no time for me. So the only time when I can have my time is when my kids are sleeping. So it is actually before they rise. Yes. Before they are Yes. up. So I'm up that time. Right. And that's the time that I give to myself. Wonderful. So you wake up before your family wakes up, right ma'am? Yes. So you're an early riser and then only you can afford to have that 1 hour extra in your life, right? अब वही बात है कि 24 घंटे जो हम, जिसमें सारा टाइम हमेशा यही कहते रहते हैं कि वक्त कम हो रहा है। कविता मैम ने भी कहा कि बहुत सारे काम हैं जो जल्दी करने हैं, कम टाइम में निपटाने हैं। अब उसी टाइम की कमी में मैम, योर गुड नेम प्लीज? सॉरी, वी जस्ट हर्ड इट फ्रॉम यू. AP ma'am, yeah. So AP ma'am said she can spare 1 hour, पूरा 1 घंटा 60 मिनट. हमने अभी सिर्फ 1 मिनट की एक्सरसाइज की थी 60 सेकंड की, और मैम पूरा 1 घंटा अपने लिए निकाल पाती हैं, which is a big time achievement. Okay, anybody else? आप क्या करते हैं सारा दिन में 24 घंटे में अपने आप को बेहतर महसूस कराने के लिए? Good morning, madam. Very good morning, sir. Myself, DL Verma. Right, sir. जो क्वेश्चन आपने पूछा है मैं उसका जवाब उसी हिसाब से दे रहा हूँ। मैडम, मैं सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बजे करीब उठता हूँ और हमारे घर पे मेड सर्वेंट आती है अपने बच्चे को लेके बर्तन साफ करने के लिए जी। उपचारी, मतलब 1-2 किलोमीटर दूर से आती है। जी सर। और आजकल थोड़ी सर्दी भी हो रही है और उसके पहले भी थोड़ा मौसम ऐसे था। हाँ जी। तो मैं सबसे पहले, मुझे चाय पीने की हैबिट मेरी कुछ ज्यादा है, तो मैं सबसे पहले उठता हूँ और मेरे लिए चाय बनाने की सोचता हूँ। तो मैं उन दोनों को देखता हूँ तो मैं 1 कप की जगह 3 कप चाय बनाता हूँ मैडम। अच्छा, ओ वंडरफुल, वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया। ओके जी। सबसे पहले मैं उन दोनों को 2 चाय कप देता हूँ और साथ में 2 टोस्ट भी देता हूँ ताकि वो थोड़ी सी एनर्जी मिले बाद में काम करने के लिए। जी तो जब जी। वो मेरे साथ में चाय पीते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। वाओ सर, बहुत बहुत ब्यूटीफुल सर। और वही सवाल ये था कि आप सारा दिन में अपने आप के लिए अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए क्या करते हैं? एंड सबसे बड़ी बात ये कि हाँ आप, दूसरी बात है, उसके बाद में मैं छत पे जाता हूँ और छत पे हमारे मतलब कई सारे कबूतर तोते वगैरह बैठे रहते हैं जो मेरा इंतजार करते हैं कि ये कब ऊपर आएंगे और हमारे घर पानी डाल देंगे। तो
कल की जो बची हुई रोटी चपाती जो होती है और दाना पानी जो होता है, तो मैं उनके लिए छत पे डालता हूँ, पानी वानी पिलाता हूँ उनको। तो ये इस प्रोसेस में मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा करीब लग ही जाता है। फिर Wonderful, sir. 7:30 8 बज जाते हैं, फिर रात में नीचे आता हूँ, तो 7:30 बजे करीब मैं थोड़ा घर में गिरा आदमी हूँ। Right. श्रद्धा करना स्टार्ट करता हूँ, तो उसमें माता वैष्णो देवी का जो आरती है और जो भजन वजन आते हैं, Right. वो सुनता हूँ मैं। तो उससे थोड़ा घर पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरी मिसेस को अच्छा लगता है, जो कहना है सबको अच्छा लगता है। तो ये Wonderful. सुबह की मतलब 2-3 घंटे की एक्सरसाइज होती है। तो ये बिल्कुल. मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है। वंडरफुल, वंडरफुल. Thank सर you. आपका नाम एक बार फिर से, सॉरी मुझे ठीक से आपका नाम सुनाई नहीं दिया था. Myself is GL Verma, Jodi. TL वर्मा सर, राइट? Thank you. ओके, वेरी ब्यूटीफुल सर. और देखा जाए आप जो भी कर रहे हैं और उसमें मतलब कहीं ना कहीं आपका टाइम भी लग रहा है, आपका एफर्ट भी लग रहा है, राइट? मेहनत भी करनी पड़ रही है. वही चीज है कि चाय 1 कप बनाना या 3 कप बनाना, फिर सोचना अब ये भी एक पूरा सोच है, एक पूरी एक जिम्मेदारी है, राइट? कि चाय के साथ टोस्ट भी होना चाहिए. मतलब वो भी आप शायद खत्म होने से पहले खरीद कर लेकर आते होंगे कि अगले दिन की चाय के साथ मुझे टोस्ट भी देना है. ऐसा नहीं होता है कि चीजें उसी टाइम सब कुछ एकदम हो जाती हैं. हमें उसकी पहले से प्लानिंग, पहले से प्रेपरेशन करनी पड़ती है. कबूतर को अगर दाना देते हैं तो दाना भी खरीद कर लेकर आना पड़ता है, राइट? तो आप जहां अपने घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए वैसे भी सुविधाएं वो कर रहे हैं, तो अब उसमें ये 2 लोग एक्स्ट्रा और वो कबूतर भी एक्स्ट्रा फिट इन हो गए हैं, जो कि एक तरह से आपने अपनी जिम्मेदारी का दायरा बढ़ा दिया है. लेकिन ये वो जिम्मेदारियां हैं जिनका चुनाव आपने खुद किया. आपने खुद इसको अपनी मर्जी से अपना ये एक वो एक एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एरिया ऑफ रिलेशंस बढ़ाया है, राइट? आज वो कहीं ना कहीं वो जो आपके घर काम करने आती हैं, वो भी बड़ी उम्मीद से आती होंगी और उन्हें भी ऐसा लगता होगा कि यस वो एक अपने आप में स्पेशल महसूस होता होगा कि यस सर ने हमारा ध्यान रखा. और उनका भी अगर हम देखें कमिटमेंट लेवल डेफिनेटली ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा वो भी पूरी उससे इच्छा से और सही मंशा से अपना काम निभाती होंगी. सो एंड देन इसी में आप अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं. द बेस्ट पार्ट इज यस मतलब वो करके जो आपकी अपनी आत्मसंतुष्टि है, जो आपका अपना एक पर्सनल जॉय है, जो शायद दूसरे को नहीं समझ आएगा, लेकिन if you are liking it, if you are loving it, then it's the best for you, right? वो उसमें हमें किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, किसी को ये नहीं बताने की जरूरत है कि आप कैसा या दूसरों को ऐसा क्यों करना चाहिए. आप उसमें खुश हैं, आप उसमें satisfied हैं. that is the the most which is required. Thank you so much to Verma sir. Anybody else? आप अपने 24 घंटे में अपने आप के लिए क्या करते हैं टू मेक योरसेल्फ फील गुड, फील बेटर, फील हैप्पी? मेरे पास है. ओके. यस, कौन माइक लेना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग मैडम. वेरी गुड मॉर्निंग सर. यस सर. हाँ जी. हाँ जी सर, आ रही है पर थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी कम है. जाता हूँ अपनी वाइफ के साथ 1 घंटे के लिए. और मुझे सबसे अच्छा तब लगता है जब मेरी क्लास होती है. अगर दिन में 1 क्लास या 2 क्लास ले लेता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम हो गया है. मुझे सबसे ज्यादा तभी मिलती है. क्लास जो होती है उससे लगता है कि आज कुछ मजा नहीं आया. राइट, कुछ छूट गया. मजा तो तभी आता है जब 1-2 घंटे बच्चों को कुछ ना कुछ बता देते हैं. वंडरफुल सर. रेस्पॉन्ड करते हैं तो और मजा दुगना हो जाता है. और मजा दुगना हो जाता है, राइट? सो सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय पाहुजा.
संजय बाहुजा। संजय सर, जैसे आपने पहले तो बहुत अच्छी बात है कि आप साइकिलिंग करते हैं, तो एज इट इज आप फिजिकल फिटनेस, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं, राइट। और दूसरा जो आपने कहा कि एक्चुअल आपको ज्यादा मजा क्लास लेकर आता है, और उसमें भी मजा दुगना हो जाता है जब बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मैं गारंटी से ये कह सकती हूँ कि तो फिर आप अपनी क्लास के लिए सिर्फ एक्साइटेड नहीं होते होंगे, आप वो थोड़ा कोशिश भी करते होंगे कि उसको और मजेदार और ज्यादा हम बेहतर बना सकें, जिसमें बच्चे बेहतर रिस्पॉन्ड करें, बेटर पार्टिसिपेट करें। इज इट समथिंग लाइक दैट सर? कुछ ऐसा भी रहता है? यस मैडम। Yes, okay, wonderful. Thank you, sir. That was Sanjay sir, जिनको as it is अपनी classes में ही सबसे ज्यादा मजा आता है, तो उनको तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और एक्स्ट्रा, बट उसके बावजूद yes वो साइकिलिंग भी कर रहे हैं। Anybody else? Anybody else? Yeah, sure. Ma'am, I enjoyed singing with my kid. Oh, wonderful, ma'am. और आप रोज करती हैं ऐसा, मैम? No, ma'am, रोज तो नहीं, twice in a week. Twice in a week. मैम, जिस चीज में आपको खुशी मिलती है, आप उसी को सबसे कम कर रही हैं या उसको सबसे कम वक्त दे रही हैं, ये तो बड़ी बेइंसाफी है। मतलब देखिए, वही चीज है कि आपकी लाइफ में जब आप एज इट इज, आपसे ज्यादा आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट ना हो सकता है, ना होना चाहिए। एंड वही बात है कि आप जब खुश हैं, एंड आई थिंक आपका बच्चा भी उसमें एंजॉय करता होगा। Yes, ma'am, but Yes. twice a week इसलिए क्योंकि पूरे दिन में टाइम मैनेजमेंट बहुत दिक्कत होती है। आप टाइम जी है तो यार किसको खुश करें? अगर अपने आप को खुश करने लगे तो बाकी लोग तो कोई खुश हो ही नहीं पाएगा, ना इन-लॉज खुश हो पाएंगे, ना बच्चे खुश हो पाएंगे, ना पति खुश हो पाएगा। तो उसके लिए हमें लाइक आई हैव टू सैक्रिफाइस इन अ वीक, आई हैव टू गिव ओनली 2 hours फॉर मी टू मेक अदर्स हैप्पी। Okay, How okay. to balance? I'm not able to balance. Two. I think that's Kavita ma'am, right? Yes, ma'am. आपकी तो आवाज पहचान गई हूँ मैं। कविता मैम, देखिए, पहले तो वही बात है कि गाना गा के सिर्फ आपको खुशी नहीं हो रही है, आपके बच्चे को भी खुशी हो रही है, राइट। तो आप उसी में जो मतलब उसको रिड्यूस कर रही हैं, वो टाइम जो कम कर रही हैं, वो आप अपने बच्चे की भी खुशी का टाइम कम कर रही हैं, राइट। जहां पर वो दोनों का, आप दोनों का एक पर्सनल टाइम है, एक अपना एनर्जी टाइम है, राइट, शेयरिंग दोस गुड मोमेंट्स विद ईच अदर। दूसरा आपका जो कंसर्न था कि अगर अपने आप को टाइम देंगी, अपनी खुशी पे फोकस करेंगी, तो फिर आपका जो टाइम इन लॉज के लिए, हस्बैंड के लिए या और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, वो कम हो जाता है। बट अगेन, आप जब खुद खुश नहीं है, खुद स्ट्रेस्ड अप है, खुद आप, ऐसा लगता है कि चीजें आउट ऑफ बैलेंस हो रही हैं, या आप मतलब शायद वही तनाव में है, तो छोटी छोटी बातों पे डेफिनेटली आप गुस्सा भी होती होंगी, कभी कभी एक, या कभी कभी एकदम इनटॉलरेंट भी हो जाती होंगी कि अब आप किसी की बात नहीं सुनना चाहती हैं, या किसी को फिर हो सकता है कि ठीक है, सुन तो रही है लेकिन उसको बेमन से निभा रही हैं, राइट। खाना भी बनाया तो फटाफट मतलब ना उसमें स्वाद आया, ना उसमें प्यार डला। नहीं, वो इंटॉलरेंस अपने हस्बैंड पे निकाल लेते हैं। वो सबसे ज्यादा हाँ, देखिए कविता मैम, आप कितना सारा इनजस्टिस कर रही हैं। पहला इनजस्टिस खुद के साथ, दूसरा इनजस्टिस आपका बेटा है, राइट, बेटे के साथ गाना गाती हैं आप? यस मैम। दूसरा इनजस्टिस बेटे के साथ, और फिर एज इट इज इन लॉज को खुद सुना नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली जहां नहीं सुना रहे हैं, वहां आप उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन सीमित कर रही हैं, राइट। वहां पर आप लड़ नहीं रही हैं, लेकिन आप एक कोल्ड वॉर जरूर छेड़े हुए हैं। कोल्ड वॉर होता है जिसमें हम कुछ सुनाते भी नहीं है और हम चुप्पी थाम लेते हैं, राइट, चुप्पी ठान लेते हैं, और फिर वो ज्यादा खतरनाक होती है, राइट, जिसमें वही चीज है, सामने वाले को समझ में भी नहीं आता कि मुझसे क्या गलती हो गई या मैंने क्या कर दिया कि अब ये बात भी नहीं कर रही है और वैसे ही मुंह फुलाए घूम रही है। और सबसे ज्यादा इनजस्टिस तो आप अपने हस्बैंड के साथ कर रही है, उनके साथ तो इनजस्टिस नहीं, अत्याचार कर रही है, राइट। सो
अब वहीं पर मतलब देखिए कविता मैम, यही सोचना है कि आप जो अपने अगर सारे दिन की जो चिंता है, जो तनाव है, अगर आप उसको वेंट आउट नहीं कर रही हैं, राइट, वेंट आउट जो शायद आप गाना गा के करती हैं, वेंट आउट जो भी आपको जो भी और चीजें जो आपको रिलैक्स कराती हैं या आपकी एनर्जी को कहीं चैनलाइज करती है, जिस तरह से आई थिंक वर्मा सर साइकिलिंग करते हैं, राइट, इपी मैम सुबह वॉक पर जाती हैं, राइट, तो वो जो वक्त है, या फिर हमारे आई थिंक इट वाज सतीश सर, आई थिंक जो कबूतरों को दाना खिलाते हैं, मैं नामों में शायद गड़बड़ कर रही होंगी, राइट। अब वो जो एक आप अपनी एनर्जी को सही जगह लगा रहे हैं, खासकर वहां लगा रहे हैं जहां पर आपको थोड़ा सा बेहतर महसूस हो रहा है, अपनी आप वो एनर्जी को वापस रिकवर कर रहे हैं, राइट। पर अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी एंजाइटी, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी इरिटेशन, अपना इम्पेशंस को और ज्यादा बढ़ा रही हैं, एंड उसका प्रभाव आप सिर्फ अपने ऊपर नहीं कर रही हैं, उसका वो जो कहीं साइड इफेक्ट्स हैं या वो जो इमोशनल अत्याचार है वो अपनी जिंदगी में आप आसपास अपने जो सबसे निजी लोग हैं उन सब के साथ कर रही हैं। सो आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अभी वही बात है, जब मैंने ये सवाल पूछा कि आप अपने 24 घंटे में क्या करते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए, तो सिर्फ 4 हाथ खड़े हो पाए, बिकॉज मैक्सिमम, एंड स्पेशली आई थिंक ये सिर्फ कविता मैम का स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, ये मैक्सिमम का स्टेट ऑफ माइंड यही है कि यस, अगर मैं अपने पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं या कर रही हूं तो शायद मैं अपने लोगों के का टाइम कम कर रही हूँ, लेकिन बात ये है कि आज इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट इज अबाउट क्वालिटी। आप जितना वक्त उनके साथ बिता रहे हैं वो अच्छा वक्त होना चाहिए, राइट, जिसमें आप एक दूसरे को बेहतर महसूस कराएं, हेल्दी डिस्कशंस करें, एक दूसरे की सुनने। अब वही बात है, आप खुद में चिंतित हैं, खुद में परेशान हैं, आपका मन कहीं भटका हुआ है, तो क्या हम दूसरे को सुन पाते हैं? कोई हमारे वही बात है कि हमारे स्पाउसेस हमसे कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे इन लॉज हमें कुछ बताना चाहते हैं, खासकर जब आप सारा दिन के बाद घर जाते हैं, राइट, आपने पूरा अपना जो अपना इंस्टीट्यूट में अपना दिन बिताया, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जब आपका डे क्लोज हुआ, उसके बाद जब आप घर जा रहे हैं तो बहुत सारे वो जिनको आप सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, आपके इन लॉज, आपके बच्चे, आपके स्पाउसेस, जो आपका सारा दिन से इंतजार कर रहे हैं, फिर क्या हम उनसे अच्छे से मिलते हैं, उनसे सारा अपनी जो एक पॉजिटिविटी है, एक एनर्जी है, वो शेयर करते हैं या कुछ और शेयर करते हैं? How do we meet our very own people, our very lovable people, जो आपसे सारा दिन के लिए सेपरेट आउट हो जाते हैं जब आप अपने काम अपनी वर्क प्लेस पे पहुंच गए हैं, वो हो सकता है कहीं और अपने काम से या स्कूल या इंस्टीट्यूट या जहां भी वो जा रहे हैं, राइट, और वो जो वक्त जो शाम का जब हम सब वापस इकट्ठा होते हैं उस घर की छत के नीचे जहां हम एज अ फैमिली वी कम टुगेदर, तो क्या हम वो अपना एक मतलब पहले तो अपना टोटल फोकस एक दूसरे पे लगा पाते हैं? क्या हम एक दूसरे की बात सुन पाते हैं? क्या हम दिल खोल के एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं? या फिर वही बात होता है कि हम फिजिकली तो घर पहुंच जाते हैं लेकिन मेंटली इमोशनली हमारे साथ बहुत सारी चिंताएं चल रही होती हैं, और जिसके चलते हम चाहे उनके साथ फिजिकली बैठे होते हैं लेकिन हम उनको सुनने के लेवल पर ही नहीं आ पाते हैं। So what do we take back home? Do we take back home all that energy, that positivity, that that listening ability कि हाँ अब हम आपको सुन रहे हैं, या फिर यस हम किसी और ही स्टेट में होते हैं, किसी और ही अवस्था में होते हैं by the time we go back home? कैसे होते हैं? कितने बुझे हुए होते हैं या कितने ज्यादा हम फिर मतलब अपने आप में या खुश? हाँ जी, यस मैम। हाँ जी पूनम मैम। एक्चुअली मेरी 2.5 साल की डॉटर है, तो मैं जी। जब घर जाके उसको पहली बार देखती हूँ तो मैं बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ। कितना ही वर्क हो, कितना ही वर्कलोड हो ऑफिस में, वो बिल्कुल भी लेके नहीं जाते, उसको कंप्लीट करके जाते हैं, क्योंकि जाते ही वो मेरा पूरे दिन से वेट करना है। तो वो
एनर्जी लेवल ना बहुत हाई होता है उस टाइम, क्योंकि Wonderful. क्योंकि उस टाइम का वेट होता है कि मैं कैसे घर पहुंच के उससे राइट सो आई थिंक आपके केस में पूनम मैम वो एनर्जी आप कम देती हैं और ज्यादा लेती हैं, राइट मतलब वही चीज है कि वो जो आपकी डॉटर आपके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, इज इट? एक और बात हम कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ जो हमारे कॉलेज का एनवायरनमेंट है वो इतना पॉजिटिव है कि हम नेगेटिव चीजें लेके ही जाते हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, तो यहाँ से मतलब नेगेटिविटी हमको लेके ही नहीं। Wonderful. That is so nice. Okay, that's actually मैम ये तो मैं कहूंगी कि ये मतलब आपकी खुशकिस्मती है, you know, majority of the times we feel कि work place पे बहुत stress होता है, तो that means जो पूनम मैम ने कहा that happens to be a reality for almost everybody कि आपको work place stress नहीं है, वर्कप्लेस स्ट्रेस नहीं है मैम, आपकी Workplace stress नहीं है। बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है, ठीक है, काम बहुत होता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, बट स्ट्रेस नहीं है। ओके वंडरफुल। ये पूनम मैम की बात को थोड़ा सा हम और ज्यादा इलैबोरेट कर सकते हैं और ज्यादा जस्टिफाई कर सकते हैं कि काम है लेकिन स्ट्रेस नहीं है। अब ये दो चीजें भी थोड़ा सा वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि ये कैसे कोरिलेटेड है, कैसे डिफरेंट है कि काम भी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं लेकिन स्ट्रेस नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? एनीबॉडी? जी सर। एनवायरनमेंट ऐसा है कि ग्रुप में सभी लोग काम करना चाहते हैं, ऐसा मतलब डीमोटिवेटेड कोई बहुत कम लोग हैं जो डीमोटिवेटेड करते हैं काम करने के लिए, तो एनवायरनमेंट हमारा बहुत ही फ्रेंडली है और सभी लोग मिलकर काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वंडरफुल, वेरी नाइस। सो बेसिकली मोटिवेशन लेवल्स हाई हैं, राइट, जहां पर इवन इफ हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, वर्कलोड ज्यादा है, बट स्टिल वी डोंट फील स्ट्रेस्ड आउट। जी सर। नमस्ते मैडम, मैं सुनील कुमार। नमस्ते सर। मेरा ये मानना है कि जिस काम में मजा आने लग जाए उसमें स्ट्रेस होता है। वंडरफुल सर, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। जिस काम में मजा आने लगे वहाँ स्ट्रेस होता ही नहीं है। आई थिंक हमारे वर्मा सर ने भी यही कहा था कि सबसे ज्यादा उनके लिए जो मतलब दिन का जो खुशी के पल होते हैं वो क्लास लेने के टाइम होते हैं, राइट। सो वही एज अ टीचर जब आप अपनी क्लासेस को एंजॉय करने लगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर उसमें फर्क पड़ता है कि क्लास कितना लंबा हो गया या कितनी क्लासेस और एक्स्ट्रा ऐड हो गई, राइट, क्योंकि आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। मे बी आप उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं सारा दिन कि मेरा क्लास टाइम कब होगा, तो फिर वो जो आपका एनर्जी लेवल है, आपका एक्साइटमेंट लेवल है, वो हमेशा ही बहुत ऊंचा उठा हुआ रहता है। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू से एनीथिंग? कि आई थिंक वैसे सर ने जस्टिफाई कर दिया है। अब ये जो दो फैक्टर्स थे पूनम मैम ने और जो सर ने बताया कि मोटिवेशन ही इतना ज्यादा है, एनवायरनमेंट ही इतना पॉजिटिव है, और दूसरा जैसे सर ने कहा कि जिस काम में मजा आने लगता है वहीं पर हमें स्ट्रेस नहीं होता है। अब पहली बात तो ये क्लियर हो गई है कि भैया आपको कोई वर्क प्लेस स्ट्रेस नहीं है, तो फिर स्ट्रेस दे कौन रहा है? घर वाले? जी। हाँ, तो फिर वो स्ट्रेसफुल फैक्टर्स कौन है जिंदगी में, हमें वो भी तो समझ आने चाहिए। अब अभी भी अब कंसर्न ये है कि रिकॉर्डिंग चल रही है, राइट, बट डोंट वरी, ये ऑफिशियल रिकॉर्डिंग है, ये आपके घर वालों तक नहीं पहुंचेगी, राइट। सो घर वाले हैं वो स्ट्रेस का फैक्टर या फिर वहां मोटिवेशन की कमी है, वहां पर हमें जो हम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और जो हमारी शायद प्रथम जिम्मेदारियां हैं, राइट। अगर हम देखें हम अपनी जिंदगी में जब प्रायोरिटाइज करते हैं तो सबसे पहले खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए, जो आज हमने एक जो राठौड़ सर से सीखा है कि अगर आप खुश नहीं हैं, आप अपने आप में स्वस्थ नहीं हैं, अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं, आप किसी और के लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, राइट। सो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो आप खुद होने चाहिए। फिर उसके बाद जो आपके सबसे ज्यादा निजी हैं, करीबी हैं, कौन होते हैं वो लोग जिनको हम अपना सबसे ज्यादा निजी करीबी मानते हैं? पेरेंट्स, वंडरफुल, वेरी नाइस, ओके। और कोई? फैमिली, वन वर्ड इज फैमिली।
family. One word is family, which includes parents, spouses, children, spouses. अभी भी कुछ लोग अपना वो सेफ साइड रख रहे हैं कि भैया गलती से भी अगर ये घर वीडियो चला गया तो यस हमने स्पाउस का नाम लिया था, राइट? लेकिन बात ये है कि फिर वहीं पर शायद कुछ कमी है। तो यस, वो जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा हमारी लाइफ की प्रायोरिटी भी है, लेकिन कहीं वहां पर वो मोटिवेशन लेवल्स की कमी है। अब मोटिवेशन कहाँ से आती है? ओके, हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, हम इस वक्त वही बात है, हमें कारण समझना है। एंड इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स, इट इज अबाउट दैट एनवायरमेंट, अबाउट दैट दोज फैक्टर्स व्हिच वी आर मिसिंग इन आवर रिलेशंस। मोटिवेशन है हमारे रिलेशंस में, खासकर हमारे निजी, हमारे पर्सनल रिलेशंस में। क्या हम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं? क्या हम एक दूसरे से प्रभावित होते हैं? क्या हम एक दूसरे से सचमुच जानने की, सीखने की इच्छा रखते हैं? क्या हम एक दूसरे को सचमुच अप्रिशिएट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं या थैंक यू बोलते हैं? हम वर्क प्लेस पे तो ऐसा करते हैं, राइट? जब भी कोई सर मैडम कोई हमारी थोड़ी सी भी मदद करते हैं तो हम जरूर कोशिश करते हैं कि यस उनको थैंक यू बोले। अच्छा, थैंक यू नहीं भी बोला तो अगले दिन हम जरूर मेहनत करेंगे, थोड़ा सा और हिम्मत करेंगे कि अपने घर से कुछ बनाकर लेके आ गए, उनको स्पेशल फील कराने के लिए, राइट? फिर एक हमारा जरूर आप लोगों ने पॉजिटिव एनवायरनमेंट की बात की है, एक हमारा जरूर एक वक्त होता होगा जब हम एक दूसरे के साथ बैठकर बात करते होंगे, थोड़ा सा अपने पर्सनल कंसर्न्स शेयर करते होंगे। वो कौन सा वक्त होता है? at workplace, in your institute, वो कौन सा वक्त होता है? लंच टाइम, राइट? लंच टाइम। और उस टाइम पे वही बात है कि सबके अलग अलग टिफिन खुलते होंगे, राइट? और हम सिर्फ बातें नहीं शेयर करते होंगे, हम सबसे इम्पोर्टेंटली खाना शेयर करते होंगे, राइट? और फिर वही बात है कि हर कोई एक दूसरे की खाने का स्वाद ले रहा है, हर एक दूसरे के खाने की तारीफ कर रहा है ना? और कई तो ऐसा होता होगा कि टिफिन ही बदल लेते होंगे कि भैया आज मुझे अपने घरवाली का पसंद नहीं है तो आप अपना ही खिला दीजिए, वो बेहतर है, ये घरवाली को नहीं बताएंगे, राइट? सो पर सबसे जो है कि यस उस पल में हम एक तो दिल खोल के चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, एक फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ मतलब शेयरिंग, डिस्कसिंग, अपनी चॉइसेस को एक्सप्रेस करने का। क्या ये फ्रीडम हमारे घर के खाने के टेबल पर भी होता है? यस। ओके, वंडरफुल, किसी के है, राइट? सो बट वो फ्रीडम सिर्फ ये नहीं होना। हाँ जी, जी सर। एक्चुअली मैम गॉसिप जो चीज है ना वो हमेशा एंजॉयबल होती है, चाहे आप घर पे करो, चाहे फैमिली के साथ में करो, चाहे दोस्तों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर, वेरी नाइस। जो अपन प्रेशर की बात कर रहे थे ना मैम, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि किसी के वर्क प्लेस पे भी प्रेशर नहीं है, घर पे भी प्रेशर नहीं है, फिर भी प्रेशर है तो कहाँ है, आप पूछ रहे थे। तो कुछ देर में मैंने सोचा इसका आंसर। तो जो प्रॉब्लम है मैम वर्क टाइम बैलेंस की है, जो हमें आप बोल रहे प्रायोरिटी में हमको ऊपर रखना चाहिए अपने आप को, वो लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। आप हमेशा अपने आप को ऊपर रख नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मल नेचर होती है आदमी अपने आप को सबसे नीचे रखता है। अपने जो वर्क होते हैं, जैसे मैं शायद कुछ काम करता हूँ अपने पर्सनल, तो मैं उसको सबसे लास्ट प्रायोरिटी रखता हूँ कि राजेश दादी जो पेज सबमिट करनी है वो कभी नहीं करता, पढ़ काम कर रहा है, पेपर ही सबमिट नहीं कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, वर्क पे भी प्रेशर नहीं है, प्लेस पे घर पे भी प्रेशर नहीं है, और फिर भी काम नहीं बन रहा है, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। एंड व्हाट इज रॉन्ग वो जो हमें आइडेंटिफाई करना है। बट मुझे ऐसा लगता है दैट इज एक्चुअली वर्क टाइम बैलेंस। तो वो जो वर्क टाइम बैलेंस है वो हमारा सबका ही फिक्स होता है, क्योंकि जो मॉर्निंग टाइम होता है तो वो कॉमन होता है सबके लिए, और शाम को बेसिकली जो भी वर्क होते हैं वो प्रायोरिटी अपन तय नहीं कर पाते हैं, वो मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। राइट, बोलना चाहता हूं मैं जी, इतना ही बोले, लेकिन एक लाइन है कि यकीन मानिए सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कभी आप अच्छे भी थे। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। सर आपका शुभ नाम प्लीज? मैम राजेश दादी।
राजेश सर, राजेश सर आपने आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा सा आई डोंट नो, हाँ अब ठीक है, ओके। बिल्कुल सर, आपने जो भी बातें कही कि वही चीज है कि शायद स्ट्रेस कहीं नहीं है। सबसे पहले तो हम जो आपका चीजें जो थोड़ा सा हमें उम्मीद देती है, थोड़ा सा राइट पॉजिटिव फील कराती है, हम उस पर ध्यान देंगे कि स्ट्रेस एक्चुअली कहीं नहीं है, राइट। और कंफ्यूजन ये है कि फिर भी स्ट्रेस हम महसूस कर रहे हैं, राइट। दूसरा आपने कहा कि वर्क लाइफ बैलेंस, राइट। आज अगर हम देखें जिस तरह का समाज है, जिस तरह का हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, राइट, आई वुड नॉट इवन से कि हमारी इच्छाएं हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं। आज whether you are a man or a woman, we all have ambitions and aspirations in life, even बच्चों की भी हैं, राइट, सबकी। हर कोई अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ अपने आप को साबित करना चाहता है कि ये मेरी काबिलियत है, मैं इसके लिए जाना चाहिए, राइट। एंड इनफैक्ट वही जहाँ पे हमारी पहचान नहीं होती है, जहाँ पे लोग हमें अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हमारा मान नहीं होता है, वही हमारे मोटिवेशन लेवल्स कम होने लगते हैं, राइट। अब वही बात है, जब ये महत्वाकांक्षाएं हैं और जहां हम अपने आप को हर तरह से साबित करना चाहते हैं, ये किसी ने कहा नहीं है, किसी ने हमारे को इसमें, बट वही बात है, अब प्रेशर क्यों है? क्योंकि काम करना है, काम का प्रेशर नहीं है, प्रेशर ये है कि काम को अच्छे से करना है, राइट। उसको उसमें क्वालिटी लेकर आनी है, उसको और ज्यादा महत्वपूर्ण या इम्पैक्टफुल बनाना है। अब वर्क लाइफ बैलेंस, आज इनफैक्ट वर्क इज लाइफ। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले कि हम एकदम से उस चीज को लेकर वो हो जाते हैं कि यस ये कैसी बात कह दी है। बट अगर हम देखें, हम सबसे ज्यादा मोटिवेटेड, सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड, सबसे ज्यादा अपने आप में वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन तब महसूस करते हैं जब हम कुछ कर पाते हैं, या हम जब कुछ महत्वपूर्ण कर रहे होते हैं, राइट। ज्यादा लोग जिंदगी में वो हताश हैं, वो डिप्रेस्ड हैं, वो अपनी लाइफ से कहीं डीफोकस्ड हैं, जिनके पास कुछ करने को नहीं है। और ये हाल ही में हम लोगों ने मैक्सिमम ने महसूस किया था जब कोविड टाइम आया था। कोविड टाइम जिसमें हम सब काबिल होते हुए, सब इतने एजुकेटेड, इतने क्वालिफाइड, इतने एक्सपीरियंस्ड होते हुए भी हम सीमित हो गए थे, हम रिस्ट्रिक्ट हो गए थे अपने घरों की चार दीवारी में। हम चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर पा रहे थे, किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कर पा रहे थे, किसी के लिए कुछ वैल्यूएबल नहीं, या अपने आप के लिए ही, राइट, हम अपनी वर्क प्लेस पे नहीं पहुंच पा रहे थे। और वही चीजें जिसने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लिमिट कर दिया, तब हम सबसे ज्यादा एक्चुअली स्ट्रेस्ड अप थे, जिसको हमने बहुत सारी चीजें बहुत तरह से अपने आप को नरेट किया कि हम मेंटली इम्बैलेंस्ड हैं, इमोशनली हम वीक महसूस कर रहे हैं, राइट। कहीं ना कहीं वो जो भी फैक्टर्स थे, लोनलीनेस, दूसरों से नहीं मिल पाना, हम लाइफ में बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हैं। बट अगर मैं बात करूं, हम सही मायनों में वो इम्पोर्टेंट काम मिस कर रहे थे जो हम आज एक नॉर्मल लाइफ में कर पाते हैं। हम सीमित नहीं फील करते हैं, राइट। अब सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कि यस, हम वहीं पर सबसे ज्यादा डीमोटिवेटेड या स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं जब हम अपनी बेस्ट पोटेंशियल में, बेस्ट काबिलियत के अनुसार चीजों को नहीं कर पाते हैं, राइट। जो मैं करना चाहता हूँ, जिसके मैं लायक हूँ, ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा क्वालिफिकेशन है, ये मेरी सोच है, ये मेरा नजरिया है। पर दूसरा उसमें ये होता है कि यस, जब हम एक सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो सिर्फ अपनी मनमानी नहीं चलती है। We have to listen to others also. We have to collaborate. In fact, अभी जैसे राजेश सर ने कहा कि जहां भी गॉसिप होती है वहां मजा आने लगता है। वो सिर्फ गॉसिप नहीं होनी चाहिए, that should be actually at that platform, that table for sharing of food, table for sharing of chai pakode, table for sharing of ideas, sharing of knowledge, information, right, जिसमें हम और ज्यादा अपने आप में स्ट्रॉन्गर फील करते हैं। बल्कि वही बात होता है कि कई बार हम कुछ इंपॉर्टेंट करना चाहते हैं, इच्छा तो है लेकिन कैसे करना है पता नहीं, राइट। मैं आज अपने बच्चों के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट ढूंढना चाहता हूँ, बेस्ट कोर्स करवाना चाहता हूँ, राइट, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो मैं उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से लेकर आऊं,
राइट और उसी कंफ्यूजन में वो चिंता मेरी चलती जा रही है। आई थिंक स्टार्ट में एक सर ने कहा, जब उन्होंने आंखें बंद की, उन्होंने बोला कि यस मेरे बच्चों का आज एग्जाम था और बच्चों को जो प्रॉब्लम आई वही चिंता मेरे दिमाग में अभी भी चल रही है। अब उसके लिए जो सबसे बेस्ट वे होता है वो होता है बात कीजिए, लेट्स डिस्कस इट। जहां पे भी प्रॉब्लम है, जिसके साथ भी आपको कहीं कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं समझ आई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आई, नाउ लेट मी टेल यू वेयर इज द स्ट्रेस। स्ट्रेस कभी काम का नहीं होता है। जैसा सर ने कहा, जिस काम में मजा आने लगता है वो तो वैसे ही मतलब आपके लिए और ज्यादा एक्साइटिंग और ज्यादा थ्रिलिंग हो जाता है। स्ट्रेस होता है कंफ्यूजन का। आई एम कंफ्यूज्ड, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, खुद को इंपॉर्टेंट रखूं या ना रखूं। अगर मैं खुद इंपॉर्टेंट हो गया तो हो सकता है कि मैं दूसरों के लिए जो मेरी जिम्मेदारियां हैं मैं अपना कम वक्त उनको दे पाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा है कि अगर मैं खुद में खुश नहीं हूं तो मैं दूसरों का भी मन बार बार दुखाऊंगा। मैं उनसे रूड बोलूंगा, उन पे झंझलाऊंगा, उन पे गुस्सा निकालूंगा, तो मैं फिर उनके लिए अच्छा नहीं हो रहा हूं। राइट तो अब मैं क्या करूं? बेटर तो यही है कि पहले मैं अपने आप को सेटिस्फाई करूं, अपने आप को। इट्स नॉट अबाउट कि आपको हर पल सारा दिन अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाना है। मैंने सिर्फ 24 घंटे में एक टाइम कहा था कि वो डिसाइड कीजिए जब यू आर एबल टू डू समथिंग विच मेक्स यू फील बेटर। एंड डेफिनेटली आज टाइम कंस्ट्रेन सबको है, राइट सबकी जिंदगियों में बहुत कुछ चल रहा है, तो उसमें टाइम चुराना पड़ता है, निकालना पड़ता है, जैसे इपी मैम ने किया। इपी मैम आज अपने घर वालों से पहले उठती हैं, राइट जब बाकी सब सो रहे होते हैं, जहां पर आपको किसी की बात का जवाब नहीं देना है, किसी से किसी को कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी है, वो वक्त आपका और सिर्फ आपका है। आप पर्सनल टाइम में जो करना चाहते हैं, आप वॉक करना चाहते हैं, साइकिलिंग करना चाहते हैं, आप कबूतरों के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, वो वक्त आपका है। सोचिए अगर आप वो बिजी रूटीन में भी वो स्पेशल टाइम अपने लिए निकाल सकें तो क्या इससे बड़ी कोई अचीवमेंट हो सकती है? एंड वही बात है कि एक्चुअली सुबह का वक्त ही सिर्फ अपना वक्त होता है, बाकी दिन कैसा जाएगा, कितनी अनसर्टेनिटीज होंगी, कितने चैलेंजेस होंगे, कितने प्रॉब्लम्स होंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। राइट एंड दैट इज व्हाट इज लाइफ। लाइफ हमेशा अनसर्टेनिटीज के साथ आती है, हमेशा अनप्लान्ड आती है। बट वही बात है कि जितने ज्यादा हम तजुर्बेकार होते जाते हैं, हम छोटी छोटी प्रॉब्लम से घबराना छोड़ देते हैं, या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमें विचलित करती ही नहीं है। राइट सो आई थिंक जो सिर्फ आज किसी को भी स्ट्रेस है, जो कोई कहता है मैं तनाव में हूं, परेशान हूं, वो स्ट्रेस सिर्फ डाउट का है, राइट शंका का है। ये मैं अपने आप के लिए सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, राइट और अगर मैंने अपने लिए सही कर दिया तो कहीं मैं दूसरे के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहा हूं, राइट मैंने दूसरे का वक्त तो नहीं कहीं कम कर दिया है। लेकिन वही चीज है कि अगर आप अपने आप में संतुष्ट नहीं है तो ये तो बिल्कुल 100% सच्चाई है कि आप किसी और के लिए भी कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं। अब दूसरा ये है कि इन डाउट्स को, इन कंफ्यूजन्स को खत्म कैसे करें। हाउ डू वी ओवरकम दीज doubts, confusions, these misunderstandings, these gaps that are prevailing, right? मैंने दूसरे को कुछ गलत कहा नहीं, लेकिन दूसरा मुझसे नाराज हो गया है, दूसरा मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, राइट वो आज मेरे से एक अलग ही रवैया अपनाए हुए हैं। मैं जहां आता हूं वो मेरे से बात नहीं करते हैं और कहीं और चले जाते हैं, या मेरी बात पर, हर बात पर मुझे टोकते हैं, मुझे डांटते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, राइट मैं इज्जत तो बहुत करता हूँ पेरेंट्स की, लेकिन वो मेरी समझते ही नहीं है, राइट वो मेरी जो मतलब इच्छाएं हैं, मेरी जो पसंद है, या मेरी जो लाइफ के ड्रीम्स हैं उसको वैल्यू ही नहीं करते हैं। तो फिर वहीं पर हमारा एक डिस्कनेक्ट बनने लगता है। तो ये जितने डिस्कनेक्शंस बन रहे हैं, जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही हैं, अब इसको कैसे ओवरकम करें? व्हाट शुड बी द वे आउट? बिकॉज ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है। यस आज जहां हमारे
मतलब इतनी जिम्मेदारियों के चलते जहां हम खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वहां तो नेक्स्ट लेवल अपने से उठकर अपने रिश्तों को निभा पाना, उनमें वो अच्छेपन का, अपनेपन का वो फ्लेवर लेकर आना और भी मुश्किल है। तो क्या करें जहां पर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन, इतना डाउट, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है? बट वी शुड लर्न इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, ओके। हम तो बहुत स्ट्रेस को डील करते हैं। हाँ, ओके, इग्नोर करें, ओके। यस, दैट कैन बी वन, मतलब आई थिंक सोल्यूशन कि आप उसको सुनना ही बंद कर दीजिए, राइट? अगर वो खासकर वो बात आपके मन को ठेस पहुंचाती है, दर्द पहुंचाती है, तो आप कुछ देर के लिए अपने कान उस तरफ बिल्कुल ना लगाएं, राइट? ओके, इग्नोरिंग। और क्या हो सकता है? I think better would be to tell that people what is hurting you. Tell those people what is hurting you. Exactly. So telling means that you have to at least speak, you have to communicate. Yes, communicate. बात करनी पड़ेगी। Exactly. और अगर हम देखें तो बात करना ज्यादा मुश्किल होता है या बात की शुरुआत करना ज्यादा मुश्किल होता है? उसके बाद तो सब ठीक है, जो लड़ना है, जो गाली देनी है, जो मतलब यस निकालना है, वो सब निकल जाता है। पर बात ये होती है कि शुरू कैसे करें, और वो शुरुआत से पहले की जो चिंता होती है, चिंता या जो हम ज्यादा उसके बारे में सोच रहे होते हैं, दैट इज द स्ट्रेस। Overthinking is the stress. Yes. Like when we have an inner dialogue, सारी बात खुद कर ली और फिर भी actual बात तो की नहीं। बिल्कुल, खुद सोचा, खुद उसका एक मतलब प्रॉब्लम बनाया, खुद उसका सोल्यूशन निकाला, खुद निष्कर्ष तक पहुंच गए, लेकिन जिससे प्रॉब्लम थी उसको ही नहीं बताया, राइट? और फिर उसी में हम कहीं लॉस्ट रहे, कहीं गुम रहे। ओके, सो वन वाज इग्नोरिंग, राइट? वी कैन इग्नोर। नेक्स्ट इज वी कैन टॉक, वी कैन डिस्कस, राइट? दैट इज वन सोल्यूशन। एनी अदर सोल्यूशन? हर का अलग अलग स्वभाव होता है, जो जैसा है उसको वैसा रहने दें। ओके, तो इसका मतलब छेड़ो मत। राइट? आजकल एक डिजिटल दुनिया में ना एक वो टर्मिनोलॉजी है, पोक करना। पोक होता है ऐसे कि जाके उसको चुबाना कि सुनो मेरी, राइट? अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो हम पोक करना बंद कर सकते हैं, राइट? ओके, जी सर। यस मैम, कई बार कोई डिस्कशन होते रहते हैं और कुछ डिस्कशन में कि आपको ऐसा लगता है कि जो बातें हो रही हैं वो अपने मन के माफिक नहीं है, या अपन उसको सही नहीं ठहराते, तो उस समय आपको अपनी रिएक्शन नहीं देना चाहिए। फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं लग रहा तो रिएक्शन ना, शांत रहे, चुप रहे, साइलेंट रहे। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। आपने कहा रिएक्ट ना करें, बल्कि आई थिंक ये हमें बहुत जरूरी समझना है कि एक होता है शब्द रिएक्ट करना और दूसरा होता है रिस्पॉन्ड करना। और आजकल हम लोग अक्सर रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। हमें जो सर ने यस मैम, हाँ जी, जी मैम। सर का एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैंने इसको टेस्ट भी कर लिया, ये प्रमाणित हो गया। कई बार वाइफ पता नहीं क्या बोलती रहती है तो मैं रिएक्शन देना बंद कर देता हूं। बिल्कुल, तो सर आपने तो वो नेक्स्ट लेवल की पदवी पा ली है, राइट? कि वही चीज है कि तब अगर आप शांत है तो सामने का माहौल खुद ही कंट्रोल में आ जाएगा। तो यही बोलती है कि कुछ बोलो तो सही। जी, यही बोलना चाहिए आपने तो इग्नोर कर दिया उस स्पेस में उनको कि नहीं मैं ध्यान नहीं दिया, पर जो स्पेस उनके दिमाग में था ना वो एज इज इट बना हुआ है। ट्रू, बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल मैम। और राइट, और दूसरा बात ये है कि जिनको इग्नोर कर रहे हैं वो कौन है, वो बहुत मैटर करता है, राइट? क्या वो है जिनके बिना चल सकता है आपका? अगर तो उनको इग्नोर करके गारंटी है कि शाम का खाना मिल जाएगा, तब तो इग्नोर। इग्नोरेंस मींस जो उनकी एक्टिविटी है जिससे आप स्ट्रेस में आ रहे हैं उसको टॉलरेंस का है, पर्सन को टॉलरेंस नहीं करना है। हाँ, ओके, वेरी नाइस। उनसे जो आपको हर्ट हो रहा है या जो बात आपको अच्छी नहीं लग रही है उसको इग्नोरेंस कर दो। एक आंसर सुनो, दूसरे आंसर निकाल दो।
यहाँ सब एक्सपीरियंस होल्डर्स बैठे हैं, राइट? कि वही चीज है कि उसको ये नहीं है कि उस चीज को अपने ऊपर हावी होने देना है, राइट? बल्कि चाहे उसी कान से सुनो और उसी से निकाल दो, है ना, दूसरे तक पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है। जी जी, कुछ कहना चाहेंगे? यस सर। Actually, I tried both the things. I tried ignoring and I tried keeping silent, whatever. It actually did not work. Okay. So Okay. my kids really taught me this. बच्चे तो चुप ही नहीं होते, उनका तो जो चाहिए वो they will keep on telling you because they're transparent. They trust you. If you trust someone in your relationship, you should speak. Then only it is going to solve out. I feel so. It's going to solve out only when you communicate. It actually solves out. It gets eradicated, you can say. Point of Exactly. Exactly. True. In fact, they say कि the only gap in relations is communication gap. Right? हम जहां पर भी वही बात है कि जैसे हम मतलब वही कि ठीक है, क्यों बात को छेड़ा जाए, क्यों उसको उसको दोबारा से मतलब उखाड़ा जाए, या वही कहते हैं ना हम कई बारी, बट कई बारी वही चीजें पाइल ऑन होती जा रही होती हैं। इतना कुछ हम लोग अंदर दबाए रखे होते हैं, इतना कुछ हम लोग उसको और एक्यूमुलेट करते जा रहे होते हैं कि फिर वो जब कभी बाहर आता है तो वो एकदम बिल्कुल बवंडर की तरह होता है, और उस टाइम तक शायद हालात बहुत खराब हो चुके होते हैं या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की स्कोप नहीं होती है। तो दोज डेली डोजेस ऑफ कम्युनिकेशन वेयर एटलीस्ट आप एक दूसरे पे चेक कर रहे हैं, एक दूसरे से जान पा रहे हैं कि यस आपकी जिंदगी में सब सही चल रहा है, या मैं किसी तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ, या यस अब उस टाइम पे कभी कभी यस इग्नोर करना, जहां पे यस प्रॉब्लम को इग्नोर करना, नॉट द पर्सन। दूसरा अगर ये भी कह रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दो या मुझे अभी बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो वो जानना, समझना और उनको वो स्पेस देना भी जरूरी है, राइट? दिक्कत कहाँ आती है जब हम इतना ज्यादा यस कि नहीं अभी आप बताइए, मुझे पता है आपके चेहरे पे दिख रहा है कोई तो प्रॉब्लम है, ऐसा कैसा है, राइट? एंड वी फीमेल वी डू इट मोर ऑफन, राइट? तभी यस सर्स ने सीख लिया है कि इग्नोर करना है, रिएक्ट नहीं करना है, राइट? लेकिन वही है, अगर वो उस टाइम पे पर्सनल स्पेस मांग रहे हैं तो उनको दीजिए। रिस्पेक्ट ईच अदर्स चॉइसेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कई बार हम लोग जस्ट आउट ऑफ कंसर्न, स्पेशली आई वुड टेक इट टू वी फीमेल्स, वी विमेन, हम जहां चिंता करती हैं वो चिंता के उसमें हम दूसरे को और परेशान कर देती हैं, राइट? अगर दूसरा कह रहा है कि अभी मेरा मन नहीं है बात करने का, या मतलब मे बी यस आप मतलब उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, तो वो टाइम देना जरूरी है। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? यस सर। मैं कहना चाह रहा था ऐसे टाइम पे जब ये चीज बढ़ रही हो तो दोनों का जो अच्छा दोस्त हो उसको बुलाया जा सकता है। सर तो और भी स्मार्ट निकले, सर ने जिम्मेदारी किसी और पे दे दी, राइट? ऐसा कर सकते हैं सर, लेकिन ऐसा है कि फिर देखिए वही बात है, कहते हैं कि जो घर का कचरा भी है ना वो भी सोच समझ के बाहर फेंकना चाहिए, क्योंकि वही बात है कि उसको जो उसमें भी पता चल जाता है कि घर की क्या असलियत है ना? तो वही चीज। हाँ जी सर। बहुत ज्यादा पढ़ रहा हो ऐसा कुछ तो ध्यान डाइवर्ट करने का, जैसे चाहे कि आगे बात किसी को बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसके लिए जो ध्यान डाइवर्ट करना है ना सर, उसके लिए वी नीड टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, राइट? आई थिंक जो यस कविता मैम जी, कोई चीज बुरी नहीं होती, ये तो समय समय की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। बगल में कोई खूबसूरत वाली स्कूटी हो तो जाम भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, वेरी नाइस। सो आई थिंक बट आपने बिल्कुल सही कहा मैम कि एक्चुअली इंसान कोई गलत नहीं होता है। एंड सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं फिर बताती हूँ। हाँ जी। जब कोई कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो तो मुझे लगता है उस वक्त उसको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल
बिल्कुल सर, एक्चुअली ये चीज मैं भी वही कह रही थी कि वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स पर्सनल चॉइसेस, राइट। एंड ये दोनों के लिए, मतलब ऑफ कोर्स आई थिंक मुझे लगता है अभी तो हम स्पाउसेस के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो जिस तरह का डिस्कशन है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर राइट क्योंकि सबसे ज्यादा यस यू नो हम लोग जो अगर हम देखें जो हमारा निजी रिश्ता होता है, दैट इज डेफिनेटली, एंड मैरिड कपल्स का तो हमेशा यस यू नो, बट हर चीज को एक सामान्य लेवल पर, मैरिज अगर हम बात करते हैं, मैरिज ऑल्सो इज वन फेज ऑफ योर लाइफ, वन पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप उसके साथ अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ स्पाउस, आप एक पेरेंट भी हैं, आप एक सन भी हैं, आप एक डॉटर भी हैं, या सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ भी हैं, आप एक प्रोफेशनल भी हैं। जब हम लोग हर चीज को, वही चीज है, ये आपकी प्रायोरिटीज हैं, राइट। प्रायोरिटीज मतलब ये नहीं हो सकता है, जिस प्रायोरिटीज शुड गो विद टाइम फ्रेम। जब आप अपनी वर्क एनवायरनमेंट में हैं तो आपकी प्रायोरिटी आपका काम होना चाहिए, आपके कलीग्स होने चाहिए, आपका पीयर ग्रुप होना चाहिए। उसी तरह से जब आप अपने घर पर हैं, घर पर भी आपके पास सबके लिए वक्त होना चाहिए, राइट। ये मेरा टाइम मेरे बच्चों के साथ है, ये मेरा टाइम मेरे पेरेंट्स के साथ है, ये मेरा टाइम मेरे स्पाउस के लिए, और ये मेरा टाइम मेरे लिए। That is prioritizing. When you are able to, yes, you know, differentiate, distinguish. आज हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, हम सब कुछ साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, सबको एक टाइम पे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए हम सबसे ज्यादा परेशान हैं, राइट। मुश्किल है, दिस इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी, एंड खासकर जब अगर हमने पहले से ऐसा कभी नहीं किया है, राइट। बट दिस इज बेसिकली सेल्फ मैनेजमेंट। आप जितना ज्यादा अपने आप को बेहतर मैनेज करेंगे, उतना ज्यादा आप अपनी जिंदगी को और अपने आसपास के जो लोगों को, उनको यू नो सही तरीके से उनके साथ डील कर पाएंगे, और उतनी ही अच्छे तरीके से आप एक प्रोफेशनल भी साबित होंगे। एक प्रोफेशनल भी अगर स्ट्रेस्ड अप है, अगर वो कंफ्यूजन में है, कियोस में है, तो वो कभी अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को भी सही तरीके से नहीं निभा पाएगा, राइट। अब जिसके लिए एक एनवायरनमेंट जैसे आपकी वर्क प्लेस पर है, जो आप लोगों ने कहा, जहां पर यू नो मतलब हम एक दूसरे के साथ मोटिवेटेड फील करते हैं, एक दूसरे के साथ इंस्पायर्ड फील करते हैं, एक दूसरे को अच्छा महसूस कराते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में ही हो, राइट। हम हमेशा देखिए, अगर हम देखें, हम ज्यादा यू नो जो शिष्टाचारी, यू नो ज्यादा वेल बिहेव्ड हमेशा अपनी वर्क प्लेस पे होते हैं। हमारे असली रंग तो हमारे घर वालों के और परिवार वालों के साथ ही निकलते हैं, राइट। जहां पे हम अपनी टॉप ऑफ द वॉइस पे चिल्ला भी रहे हैं, राइट। हमेशा हो सकता होगा कि आपके जो वर्क प्लेस पे लोग कहते होंगे, सर तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्या पर्सनालिटी है, लेकिन वो असली पर्सनालिटी उसी पर्सनल स्पेस में निकलती है, जहां उन्हें पता है कि यस, जब चिल्लाते हैं सर तो यू नो अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। तो वही बात है, हम वो क्यों नहीं, वो जो एक हम कहते हैं कि यस यू नो दैट वे ऑफ यू नो कंडक्टिंग इन अ बेटर वे, जहां पे हम अपने आप को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। आई एम नॉट सेइंग टू गेट आर्टिफिशियल, बट हम सब जानते हैं कि जब हम मुस्कुराते हैं तो सबसे पहले तो अच्छेपन का एहसास खुद को होता है, राइट। और वहीं पर किसी को ठेस पहुंचाकर, और खासकर वो जो आपके लिए आप सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, आप खुद भी कभी खुश नहीं हो सकते। So now we need to really start working on creating that environment. अभी personally I will say कि you know मेरे घर पे छोटा सा एक चेंज जो मैंने पर्सनली लाया था, आई एम माई सेल्फ यू नो समबडी इनटू लॉट ऑफ फिटनेस एंड एवरीथिंग, और कंसर्न ये था कि मेरी डॉटर भी वेट पुट ऑन करती जा रही थी, तो अब उसको भी फिटनेस मोड में लेके आना था। तो हमने एक पूरा रूम, एक फिटनेस रूम क्रिएट किया, राइट, जैसा हम नॉर्मल जिम्स में देखते हैं, बट हमने उसको ज्यादा ओपन स्पेस, जहाँ पे यू नो यू कैन डांस अराउंड, एक साइकिलर भी है, राइट, आप वो आप यू नो लेट कर आप योगा भी कर सकते हैं, एवरीथिंग। बट उस चेंज को लाने के लिए जो एक हमने और मतलब यू नो इनिशिएटिव लिया था, वो ये था कि जो गेस्ट रूम था उसको एक्टिविटी रूम बनाया। अब वही बात है, गेस्ट अगर आ भी जाते हैं तो आप उनको अपना बेड, अपना वो ऑफर कर सकते हैं, लेकिन वो जो आपके लिए डेली रूटीन में इंपॉर्टेंट है, आज हम देखें गेस्ट कभी मतलब मे बी महीने में, 2 महीने में या 6 महीने में एक बार आएंगे, उस एक गेस्ट रूम के लिए वो जो हम कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं, जो हमारी डेली की जरूरत है,
that daily happiness, that daily motivation, और उसी के चलते हम ना खुद खुश हैं, ना हम अपने घर वालों के लिए जो important है उसको कर रहे हैं. This was one basic example that I could think of. But वही चीज है कि ऐसा बहुत कुछ प्रायोरिटाइज करना कि हमारे लिए in everyday life, what is most important for you, what would keep you happy, what would keep you motivated, and then being able to give that motivation back to all those people जो आपके लिए important है. आज घर में भी वो environment बनाने की जरूरत है. हम सब कई, I think now it's been or more than 5 decades that we've been talking about workplace culture, workplace environment, happy workplaces, लेकिन कितना हम लोग happy home सुनते हैं, right? शायद यही एक कमी रह रही है, और यही में भी एक मिसमैच है बिटवीन वर्क लाइफ बैलेंस. काम पे तो हम सब एक कमिटमेंट, एक डेडिकेशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, लेकिन जहां पे भी हम अपने कंफर्ट जोन में वापस जाते हैं, हम वही डेडिकेशन, कमिटमेंट को मिस आउट करने लगते हैं, या उसको ही हम एक ज्यादा ऐसे महसूस करते हैं कि वो तो मेरी सुनती नहीं है, तो मैं क्यों उसकी सुनता जाऊं या निभाता जाऊं. पहले अपनी तरफ से तो अपना बेस्ट दीजिए. डेफिनेटली इन रिस्पॉन्स जरूर थिंग्स विल स्टार्ट इम्प्रोवाइजिंग, स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, स्टार्ट थैंकिंग ईच अदर. हम लोग एट वर्क प्लेस जरूर एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं, लेकिन शायद घर में भी हम लोग वो भूल जाते हैं. हम लोग ऑफिस आते हैं या अपने इंस्टीट्यूट आते हैं तो शायद एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहना जरूर याद रखते हैं, लेकिन शायद उठते ही हम सिर्फ चाय का कप मांगते हैं घर पे. वहां हमने कभी एक दूसरे को ग्रीट करके या एक दूसरे को मुस्कुराकर अच्छे दिन की शुभकामनाएं नहीं दी होंगी. यही कुछ छोटे छोटे डिस्कनेक्ट्स हैं, छोटे छोटे और वही अगर हम सुधार लें तो आई थिंक थिंग्स वुड डेफिनेटली बी बेटर. सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी तो नहीं है, ये जो इतनी बातें करनी पड़ रही है. क्या चीज सर? हाँ जी, सेंस ऑफ ह्यूमर की बिना बात कही समझ जाने चाहिए इसको क्या चाहिए, उसकी कमी तो नहीं है, इसलिए इतनी बातें करनी पड़ी. नहीं, मुझे समझ नहीं आया सर, सॉरी. सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी तो नहीं है कहीं? ये सही सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी तो नहीं है, दोनों में अच्छा, ओके ओके ओके. हाँ बिल्कुल सर, ह्यूमर तो बहुत एक बेसिक नीड है इनफैक्ट. मतलब अगर वही चीजें आज हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, जो चीजें हमें हमारे मन को बेहतर महसूस कराती है, जिस पर हम हंस पाते हैं, लेकिन वही बात है कि शायद हम अपने अपनों को लेकर इतने गंभीर हो जाते हैं, और उनकी कई बार वो जो बात उन्होंने एक मजाक में भी कही होती है उसको हम ज्यादा गंभीरता से ले लेते हैं, या ज्यादा इस तरह से मान लेते हैं कि तुमने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, और उसी में यस दोबारा वो टकराव स्टार्ट हो जाता है. So yes, we have to maintain that sense of humor also, we have to keep up that motivation also, and we have to really keep up that passion in our relations, right? I think we got disconnected or something. Hello? अच्छा नहीं, पैशन. आज हम कितना जुनून महसूस करते हैं अपने रिश्तों में कि कुछ भी कर जाएंगे, किसी भी हद तक अपने रिश्ते के लिए यस हम मतलब अपना बेस्ट देना चाहते हैं. ये कुछ सालों पहले था जब शादी नहीं हुई थी, जिसको हम कोर्टशिप पीरियड कहते हैं, राइट? उस टाइम पे वो जुनून था, वो रोमांस था, वो ताजगी थी, राइट? आज वो रिश्ते जितने पुराने होते चले जाते हैं, वो पुराने इसीलिए हो गए क्योंकि हम उसमें नयापन लेकर ही नहीं आ रहे हैं, हम नया एफर्ट, नई एनर्जी नहीं डाल रहे हैं. यस मैम. मैम आपको ना वॉइस आपका थोड़ा, हाँ जी अब सुनाई दे रहा है? कविता, हाँ इट इज बेटर. हाँ जी मैम, मैं ये फील कर रही हूँ पर्सनली कि जब हम अपडेटेड हुए तो हमारे पास रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझे लग रहा था इजी ही लाइफ बहुत, मतलब जब हमें कोई स्ट्रेस ही नहीं था, जब तक हम स्टूडेंट थे या जॉब भी कर रहे थे, कोई किसी भी चीज से कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कम थी. अब रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है ना, जिसके साथ साथ हमारा काम बढ़ रहा है और वही हमें स्ट्रेस दे रहा है कि हम वास्तव में टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे सबके साथ. यही सबसे बड़ा इशू. और जैसे मैं मेरे बच्चे के लिए फील करती हूँ, मेरा बेटा है छोटा,
वो बिल्कुल इतना स्पेस का तो जानता ही नहीं कि काफी छोटा है, वो एंजॉय करता है। उससे पूछो कि आपको क्या बनना है, तो वो जवाब देता है मम्मा मुझे तो नॉर्मल मैन बनना है। अरे नॉर्मल मैन तो क्या होता है, मम्मा मुझे तो नॉर्मल बनना है बस, और कुछ नहीं बनना, क्योंकि उसको ये अगर कभी बताते हैं ना बेटा डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या एस्ट्रोनॉट बनेंगे या कुछ नॉर्मल बनना है, उसका एम है सिर्फ नॉर्मल बनना है। अब वो क्यों इसको सीख रहा है जिसे कि नॉर्मल ही हैप्पी है, बाकी सब परेशान है। देखिए मैम, वही कितने साल का है आपका बेटा? मैम वो 8 इयर्स का हो गया। 6 इयर्स का, ओके 8 इयर्स का। एंड देखिए वही चीज है कि वो कितना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हो रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, राइट? इसका मतलब शायद उसको कुछ अबनॉर्मल दिख रहा है और उसके लिए तभी वो मैम उसका क्या है कि उसके मामा उसके लिए यूएस से कॉइन्स लाए हैं, वो उन कॉइन्स से खेल रहा है, यूएस कॉइन्स हैं उनसे खेल रहा है। ऐसा बोले कि बेटा ये कॉइन्स तो काम आएंगे, तो खेलने में थोड़ी यूज करते हैं, ये तो यूज कर काम आएंगे हमारे। तो मम्मा क्या काम आएंगे, मुझे पढ़ना नहीं है क्योंकि पढ़ने का ही तो स्ट्रेस है, मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं कुछ करूंगा नहीं, तो मैं नॉर्मल रहूंगा तो मेरे काम आएंगे, इनको मेरे को काम यूज करना है। तो उसका ये जवाब ये समझ गया कि पढ़ाई करना भी स्ट्रेस हो जाएगी, राइट ट्रू। देखिए मैम, हाँ एग्जैक्टली वही चीज है कि पढ़ाई भी जो एक जिम्मेदारी है, राइट, और बच्चों को उसका ही स्ट्रेस हो जाता है। आजकल तो वही बात है, स्ट्रेस इतना कॉमन शब्द हो गया है कि यस, मतलब बच्चे भी कॉमनली इस चीज को रिपीट कर रहे होते हैं। डॉक्टर मंजुला, रिस्पॉन्सिबिलिटी, yes sir, I know time sir, in fact yeah, I'm just you concluding can just take one another last 5 minutes. You can take. maybe 1 minute only. So अब जो हमने यही मुद्दा की जिम्मेदारियां, मैम आई थिंक ये चीज तो has been for ages together कि जब तक जिंदगी है तब तक जिम्मेदारियां भी हैं, और जैसे जैसे हम और ज्यादा समझदार तजुर्बेकार होते चले जाते हैं, ये जिम्मेदारियां बढ़ती ही हैं, कभी भी कम नहीं होती हैं। एंड इनफैक्ट ये भी हमारी ही इच्छाएं हैं, हमारी ही महत्वाकांक्षाएं हैं कि यस, परिवार होना चाहिए, परिवार में सब साथ होने चाहिए, राइट? उसके साथ हम लोग प्रोफेशनल्स भी होने चाहिए, हम वर्क प्लेस पे भी जाएं तो यस, हमारा एक अच्छा पीयर ग्रुप होना चाहिए, वर्क कंपेनियंस के साथ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। बट रिलेशंस आर द मोस्ट डिमांडिंग एसोसिएशंस। सबसे ज्यादा यस, ये आपसे डिमांड करते हैं आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी केयर्स, आपका कमिटमेंट, राइट? और ये हर रिलेशन में लागू होता है, फॉर पर्सनल प्रोफेशनल बोथ। अगर आप वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं कि आपने कुछ कहा कि मैं इस टाइम तक इस चीज को कर दूंगा, या मैं आपको ऐसे मदद कर सकता हूँ, और आप उसको वापस कमिट करके नहीं निभा रहे हैं, तो वहीं पे रिलेशंस में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगते हैं। सेम इज फॉर यस, जैसे हमारे घर पे हमारे बच्चे नाराज हो जाते हैं, यस हमारे स्पाउसेस नाराज हो जाते हैं कि आपने बोला था कि इस टाइम तक मैं शाम को वापस आ जाऊंगी, आ जाऊंगा। कोई एक जो आपने उनको कमिटमेंट दी, अगर वो कमिटमेंट पूरी नहीं हो रही है, इट इज ओके, बट उसका कारण बताइए, हैव अ रीजन फॉर इट, राइट? डोंट, जहां पर कहाँ प्रॉब्लम आती है, जहां हम एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, एंड खासकर हम अपने पर्सनल रिलेशंस को ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, राइट? अब ये कहाँ छोड़ के जाएगी मुझे, सर मैम ये बता दूं, आज इसकी भी कोई कमिटमेंट नहीं है, राइट? ये अभी इनफैक्ट प्रेजेंट सिनेरियो में मैरिज रेट से ज्यादा डाइवोर्स रेट्स हैं, राइट? मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन यस, ये कुछ रियलिटीज हैं जो हमें समझनी चाहिए। और प्रॉब्लम सिर्फ ये है क्योंकि हमने एक दूसरे को वैल्यू करना बंद कर दिया है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया है, एक दूसरे को प्यार करना बंद कर दिया है। अब बेसिकली अगर हम देखें, यही जो जो 3 चीजें सबसे जरूरी होती हैं फॉर एनी रिलेशन, दैट इज टाइम, जो आपका प्यार भी है, आपका केयर भी है, आपका रिस्पेक्ट भी है, राइट? दूसरा है मोटिवेशन। इफ यू आर नॉट मोटिवेटिंग ईच अदर इन योर रिलेशंस, देन डेफिनेटली ऑल योर रिलेशंस विल स्टार्ट फॉलिंग वीक, राइट? एंड लास्टली इज सेल्फ रिस्पेक्ट। जहां पर भी आपको लगता है कि
आपकी कहीं इज्जत कम हो रही है या आप दूसरा आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, राइट, आपको मतलब आपके जो भी एफर्ट्स हैं, जो भी आपका इच्छाएं हैं, जो पसंद है नापसंद है, चॉइसेस को रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है, फिर हम उस रिलेशन में कहीं कमजोर पड़ने लगते हैं या उसको कम वैल्यू करने लगते हैं. But then again, what you have to really work upon is your relation with yourself. आपका अपने आप के साथ कैसा रिश्ता है. अगर आप खुद से उखड़े हुए हैं, खुद से नाराज हैं, खुद से परेशान हैं, खुद से कमजोर हैं, आप अपने किसी भी और रिलेशन के साथ जस्टिस कभी नहीं कर सकते. Right? So I think I'll close this discussion for today for here only. मैं आपसे कल भी मिलूंगी, right? तो जो अगर आपकी और भी कहीं कोई doubts होंगे, we can definitely take it up tomorrow. But I must congratulate and thank you all for that wholehearted participation, right? जितना हम बात करते हैं, उतना मुद्दा समझ आता है, right? And I think now we are at a better stage of clarity. Thank you so much. Thank you. Over to you, थैंक यू Sunil. मंजुला जी, आपका सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा और पार्टिसिपेंट्स ने पूरे 100% अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, पार्टिसिपेट किया है. दे हैव लाइक्ड योर सेशन वेरी मच. तो थैंक यू वेरी मच.